morning everyone. How are you all? Today we are going to start chapter 3 of class 9 science, that is atoms and molecules. So we have also discussed about the atoms and molecules in the previous chapters, in chapter 1 and chapter 2, but today we will specifically learn about the terms, and the terms are atoms, molecules, atomicity, fourth one ions, and types of ions. We are also going to learn about types of ions, that is cations, anions, atoms. So the first one, as the name suggests, atoms. What do we mean by atom? So उससे पहले हम देखेंगे what do we mean by matter. Anything that occupies space and has mass is known as matter. We have also taken the examples of marker. It has a space, it do occupy space, it has a mass, it is a matter. Whenever the matter is divided, it will be get divided into smaller pieces. कि इसको तोड़ दे तो छोटे छोटे पीस में डिवाइड होगा. Even dividing that small pieces, it will be converted into powder. It will be converted into powder. Even breaking down the powder, it will be divided into fine particles. And finally, we will get a particle. And finally, we will get a particle that is not divisible. That is not divisible at all. And that particle is known as atoms. Each and every matter is made up of atoms, either it is solid, liquid or gas. Each and every matter is made up of particles, either it is solid, liquid and gas. All of them are made up of atoms. All of them are made up of atoms. तो इतनी बहुत सिंपल सी चीज है. व्हाट डू यू मीन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस. Atom is the smallest indivisible particle of any substance. Atom is the smallest indivisible particle of any atom. Now next, molecule. When atoms combine, they form a molecule. When atoms combine, they form a molecule. For example, atoms. Examples of atoms क्या होंगे बेटा? So examples of atoms are hydrogen, H, sodium, symbol of sodium is Na, lithium, symbol is Li, chlorine, symbol is Cl. Then we have many more examples, that is oxygen का atom अकेला O, the symbol is O. Then we have also carbon, C, sulfur, S. So we have many different types of atoms: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Clear? Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, etc., etc., etc. सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम, प्लूटोनियम. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं. जो ग्रुप ऑफ एटम है, द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट. हाइड्रोजन इज एलिमेंट. हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उसके ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट. दैट थिंग इज नोन एज एलिमेंट. बट स्पेसिफिक सिंगल पार्टिकल अगर कोई होगा, एक ही है, तो उसे क्या बोलते हैं? एटम ऑफ हाइड्रोजन. क्या बोलेंगे बेटा? एटम ऑफ हाइड्रोजन. इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनी सिमिलर पार्टिकल्स एंड इज नोन एज एलिमेंट, कि वो सोडियम एलिमेंट है और वो सोडियम एलिमेंट का एक पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम ऑफ सोडियम, एटम ऑफ लिथियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन. ब्रैकेट में उसके सिंबल्स लिखे, क्योंकि हर बार हम उसका नाम यूज नहीं करेंगे. वी विल यूज द सिंबल्स ऑफ द स्पेसिफिक एटम्स. क्लियर? नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स ऑफ molecules. Examples of molecules. For example, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होगा? It is in the die state. See, this is hydrogen molecule. यहां पे देख रहे हो? Now oxygen. ऑक्सीजन का समझो, ऑक्सीजन क्या होगा? That will be O2. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होगा बेटा? N2. ओजोन, ओजोन has the formula of
O3. Ozone is the formula of O3. There are 3 atoms of oxygen. When two or more number of atoms combine, they form a molecule. If there is a single, then it is known as atom. Now the number of atoms increases. It means 2 or more atoms combine and they form a molecule. यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा. Now it is not that simple कि same तरीके के atoms नहीं होंगे. There can be different atoms also. For example, carbon dioxide. Carbon dioxide. What is the formula of carbon dioxide? CO2. It is the formula of CO2. Then sulfur dioxide. Sulfur dioxide. And the formula of sulfur dioxide is, the formula for the sulfur dioxide is SO2. We have also calcium carbonate. Calcium carbonate. That is CaCO3. CaCO3. See, here number of atoms 2, number of atoms 2, number of atoms 2, number of atoms 3. Here also number of atoms 3, 1 atom of carbon, 2 atom of oxygen. In sulfur dioxide, 1 atom of sulfur, 2 atoms of oxygen. Total number of atoms 3. In calcium carbonate, molecule 1, it is a single molecule, all of them, but number of atoms increases in the molecule. In calcium carbonate, 1 atom of calcium, 1 of carbon and 3 of oxygen. So total number of atom is 5. Total number of atom is 5. See, what is atom? The single particle is known as atom. अभी देखो, एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम है, they are randomly moving in different directions. They are randomly moving in the directions, but we have 2 atoms. So we cannot call it as a molecule. For formation of a molecule, 2 atoms should be combined chemically. For the formation of molecule, 2 atoms should be combined chemically in such a way that that cannot be divided easily. उसको वापस split किया जा सकता नहीं है. हाइड्रोजन में H2 बना, so easily ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन उस तरफ एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ घूम रहा है. They are chemically bonded with each other. They are chemically bonded with each other. कि वो साथ में ही रहेंगे, वो अलग नहीं जाएंगे. क्लियर? सिमिलरली O2, सो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जब हम इनहेल करते हैं दैट इज O2. सो दैट इज O2. तो एक साथ 2 ऑक्सीजन आपस में बंधे हुए. सो 2 ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ ईच अदर. 2 ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड सो इट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स. क्लियर? एटम्स में क्या होगा? एटम्स अकेले अकेले घूम रहे हैं. एटम्स अकेला होता है, बट somehow they are getting chemically bonded with each other, then they form a molecule. And either it can be a 2, 3, 4 or more number of atoms. तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे एटम्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, बट देयर शुड बी मिनिमम 2 एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर. विच आर केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी का ग्लास भरता हूँ. आई हैव टेकन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर. सो इट विल हैव वाटर मॉलिक्यूल्स. And what is the formula for the water molecules? That is H2O. The formula for the water is H2O. Water का formula क्या है बेटा? That is H2O, hydrogen oxide. So H2O. In that H2O molecule, there are 2 hydrogen, 1 oxygen. So total there are 3 atoms. In the molecule of water, there are total 3 atoms. 2 of hydrogen, 1 of oxygen. So total there are 3 atoms. But in the glass of water, there will be only 3 atoms. No, there will be thousands, like crores and crores and crores of atoms. Why? Because there are crores and crores of molecules, and each and every molecule contains 3 atoms. समझ में आया? What is the size of atom? Size of atom is measured in nanometer. Atoms की size किस में measure होती है बेटा? It is measured in nanometer. Similarly, the molecules will be also in nanometer, क्योंकि molecules क्या 2 एटम या तो एक एटम का कोई साइज नहीं है तो 2 का तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है. व्हाट इज नैनोमीटर? इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मीटर. मीटर बहुत ही बड़ा यूनिट है. मीटर को 10 पार्ट में 100 पार्ट में डिवाइड करे तो बनता है सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को और 10 पार्ट्स में डिवाइड करे तो बनेगा मिलीमीटर. डिवाइडिंग द मिलीमीटर इनटू 1000 पार्ट्स. डिवाइडिंग द मिलीमीटर. मिलीमीटर यानी कितना होता है स्केल में? बहुत ही जो सबसे छोटा सिंपल यूनिट दिया होता है दैट इज मिलीमीटर. उसका भी अगर हम 1000 पार्ट्स, कितने पार्ट्स बेटा? 1000. देन वी विल गेट माइक्रोमीटर. देन वी विल गेट माइक्रोमीटर. उस माइक्रोमीटर के और 1000 पार्ट्स में डिवाइड करो, और 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट नैनोमीटर. Then we will get nanometer, and size of the hydrogen molecule will be less than 1 nanometer.
इन सब की साइज क्या होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? सो इट इज वेरी स्मॉल थिंग, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। द साइज ऑफ ह्यूमन हेयर, द विड्थ ऑफ द ह्यूमन हेयर इज 50,000 नैनोमीटर। हमारा जो ह्यूमन हेयर होता है उसकी थिकनेस 50,000 नैनोमीटर है। समझ में आया? ह्यूमन आई इज केपेबल ऑफ सीइंग अप टू दी 10,000 नैनोमीटर। 10,000 नैनोमीटर से छोटी चीज हम देख सकते हैं नहीं है। सो बट इन ए ग्लास ऑफ वाटर देयर विल बी ए मेनी मॉलिक्यूल्स। एक ग्लास ऑफ वाटर है, पूरा पानी भरा, कितने सारे एटम्स होंगे तब जाके इतना सारा क्वांटिटी में बनेगा। समझ में आया? सो देयर विल बी मेनी एटम्स। तो उसमें ऐसा नहीं कह सकते देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स इन द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल में तो 3 ही एटम्स है which are chemically bonded with each other. Now water molecules are not chemically bonded with each other. कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम जुड़े हुए हैं। समझ में आया? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पे ध्यान दो। नाउ H2 एंड O2 दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों ने मिलके बना दिया H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो ये क्या हुआ? ये केमिकली बॉन्डेड हो गया, ये बन गया मॉलिक्यूल। क्या बना बेटा? मॉलिक्यूल बना। क्या बना बेटा? मॉलिक्यूल बना। नाउ देयर विल बी करोड्स एंड करोड्स ऑफ H2O। देयर विल बी करोड्स एंड करोड्स ऑफ H2 इन द ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? लेकिन दो H2O की, एक H2O और दूसरा H2O में उतना ज्यादा कोई केमिकल बॉन्डिंग होगा नहीं। एक H2 है, दूसरा H2 है, तीसरा H2 है, देयर विल बी ए नो केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग होता नहीं है। बट एटम्स जितने भी है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनके अंदर बॉन्डिंग है, लेकिन दो H2O के अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग होगा नहीं। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन दी वाटर मॉलिक्यूल, देन देयर विल बी टोटल 3 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा। इफ देयर इज नथिंग रिटन देन वी विल कंसीडर इट एज 1। यहां पे 1 लिखो तो भी गलत नहीं है, लेकिन जहां पे कोई नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, तो हम 1 लिखते नहीं है। देखो यहां पे CO2, C के नीचे कुछ लिखा है? नहीं लिखा। इट मींस इट विल बी 1। SO2 तो S के नीचे 1। CaCO3 तो कैल्शियम के नीचे भी 1, कैल्शियम कार्बन के नीचे भी 1। इट मींस इफ नथिंग इज रिटन एट द बॉटम ऑफ एटम देन वी विल कंसीडर इट एज 1 एटम। क्लियर? अगर एक से ज्यादा है तो लिखते हैं O2H2N2 तो अगर ज्यादा है तो लिखते हैं, लेकिन अगर एक ही होता है तो उसे हम लिखते नहीं है। क्लियर? सो हियर देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इट मींस देयर आर टोटल 3 एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। Clear बेटा? इतना सिंपल। Now the atoms and molecules should be quite clear to all of you. These are the examples of atom and similarly these are the examples of molecule. Atoms combine internally and form the molecules. Atoms combine internally, कि आपस में combine करते हैं। जैसे कि salt बनता है, salt बनेगा तो salt में क्या बनता है? Sodium and chlorine will form sodium chloride. Sodium chloride and that will be NaCl and it will form a molecule. कि दो atoms of different elements, one of sodium, one of chlorine, gets chemically combined and form a sodium chloride. Clear? And forms the molecule of NaCl. क्या नमक का डिब्बा होगा उसमें एक ही molecule होगा? नहीं. There will be crores and crores of molecules, but in each and every molecule there will be only 2 atoms, one of sodium and one of chlorine. There will be one of sodium and one of chlorine. Clear? Sure? समझ में आया बेटा? Now the third topic is atomicity. Third topic is atomicity. 9th chapter का simple में से simple सा topic, easiest topic of the 9th class, that is atomicity. 9th class का सबसे easiest topic है, then that is atomicity. What do we mean by atomicity? Atomicity means number of atoms in the molecules is known as atomicity. Number of atoms in the molecule is known as atomicity. कोई भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दैट विल बी नोन एज द एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. H2O, इसकी एटोमिसिटी क्या है? व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो टोटल देयर आर 3 एटम्स. टोटल देयर आर 3 एटम्स. सो द एटोमिसिटी ऑफ वाटर विल बी 3. Atomicity of water molecule will be 3. यहाँ पे ऐसा confusion मत करना, there are only 2 atoms, there are only 2 types of atom.
देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम बट देयर आर टोटल 3 एटम्स। आपके क्लास में कितने लड़कियां हैं? 2। कितने लड़के और लड़कियां हैं? तो क्या आप आंसर दोगे? 2? नो, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट वन आर नोन एज गर्ल्स एंड अनदर आर नोन एज बॉयज। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बट देयर विल बी मेनी गर्ल्स एंड मेनी बॉयज। So here also there is only 2 type of atom but total there are 2 hydrogen 1 oxygen, total 3 atoms. Clear? What is the atomicity of hydrogen molecule? कितने एटम है हाइड्रोजन में? 2 एटम है, दोनों हाइड्रोजन के, किसी और के हो हाइड्रोजन के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने एटम से? टोटल 2, देन एटोमिसिटी इज 2। ऑक्सीजन का 2, सोडियम क्लोराइड का 1 ऑफ सोडियम 1 ऑफ क्लोरीन, एटोमिसिटी 2। 1 नाइट्रोजन अनदर ऑल्सो नाइट्रोजन 2। Atomicity of ozone, there are 3 atoms of ozone. Clear? 3 atoms in the ozone molecule. 3 of them are oxygen atoms. So the atomicity will be 3. Carbon dioxide, CO2, 1 carbon 2 oxygen, atomicity 3. Sulfur dioxide, 1 sulfur 2 oxygen, atomicity 3. Calcium carbonate, 1 calcium 1 carbon and 3 oxygen. 1 calcium 1 carbon and 3 oxygen, so total 5. The atomicity will be 5. The atomicity will be 5. Water molecule, 2 hydrogen 1 oxygen, atomicity 3. Atomicity 3. So यहाँ पे हम एटोमिसिटी निकालना तो सीख ही जाएंगे ऑब्वियसली। अगर हमें मॉलिक्यूल पता है तो हमें एटोमिसिटी समझ में आ जाएगा बेटा, एटोमिसिटी समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके थोड़े से नाम याद रखने। क्या याद रखना बेटा? वी हैव टू राइट एंड रिमेंबर द नेम्स ऑफ एटोमिसिटी। कि अगर कोई 2 एटम्स है उसमें, अगर कितने एटम्स है बेटा? 2 एटम्स है। क्लियर? तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एटोमिसिटी। अगर 2 एटम्स है, कितने एटम्स है बेटा? 2, तो उसे हम कहेंगे डाई एटोमिक। क्या बोलेंगे बेटा? डाई एटोमिक। So hydrogen is diatomic, oxygen is diatomic, sodium chloride is diatomic, nitrogen is diatomic। अगर 3 एटम है, 3 एटम है तो उसे हम कहते हैं ट्राई एटोमिक। क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई एटोमिक। If there are 4 atoms then it is known as tetraatomic, tetraatomic। If there are 5 atoms then it is known as pentaatomic, pentaatomic। Clear? If there are 6 then it is known as hexaatomic, then it is known as hexaatomic। साथ साथ लिखना है तो लिख सकते हो hexaatomic। Now if there are 7 atoms then it is known as heptaatomic, heptaatomic। Clear? If there are 8 molecules then 8 atoms in a molecule then it is known as octaatomic, then it is known as octaatomic। Clear? If there are 9 atoms in a molecule then it is known as nonaatomic। If there are 10 atoms in the molecules then it is known as decaatomic। Clear? If there is only 1 atom in a molecule, for example metals, मेटल की अगर कोई चीज ले ले, फॉर एग्जाम्पल वॉच, इट इज मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटल। तो मेटल में कोई भी 2 साथ में नहीं मिलते हैं अनलेस एंड अनटिल सामने वाला कोई नॉन मेटल साथ में ना है। सो यहाँ पे तो ओनली मेटल होता है, इसमें कोई नॉन मेटल इन्वॉल्व नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है सोडियम अकेला, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर सिर्फ मेटल का पीस है देन देयर विल बी नो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, वो अकेले एटम्स ही होते हैं। तो सिर्फ एक ही एटम है, अगर सिर्फ एक ही एटम है तो उसे हम लिखते हैं मोनो एटॉमिक। क्या लिखते हैं बेटा? मोनो एटॉमिक। समझ में आया बेटा? अगर एक है तो मोनो एटॉमिक, 2 डायटोमिक, 3 ट्राइएटोमिक, 4 टेट्राएटोमिक, 5 पेंटाएटोमिक, 6 हेक्साएटोमिक, 7 हेप्टाएटोमिक, 8 ऑक्टाएटोमिक, 9 नोनाएटोमिक, 10 डेकाएटोमिक। इफ देयर विल बी मोर देन 10 तो उसके भी नाम से, लेकिन प्लूरल में, सिंपल वर्ड में, जनरल फॉर्म में आप कह सकते हो उसे पॉलीएटोमिक। क्या कह सकते हैं बेटा हम उसे? तो उसे हम कह सकते हैं पॉलीएटोमिक। क्या कह सकते हैं बेटा हम? तो अगर 2 से ज्यादा में आप यूज कर सकते हो, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, और बाकी सब के लिए, किसके लिए बेटा? तो बाकी सब के लिए फ्रॉम, यहां पे क्या आप लिख सकते हो सिंपल वर्ड में, आप इसे लिख सकते हो पॉलीएटोमिक। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, प्लूरल फॉर्म। तो अगर 2 से ज्यादा कुछ भी है तो उसे क्या लिख सकते हो आप?
पॉलीएटॉमिक। तो अगर 3 एटम है, ओजोन इज ओजोन है, ओजोन में कितने एटम्स है बेटा? देयर आर 3 एटम्स, द एटोमिसिटी इज 3। या तो उसे ट्राइएटॉमिक बोलो या तो क्या बोल सकते हैं? पॉलीएटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक, कैल्शियम कार्बोनेट इट हैज 5 एटम्स इन इट मींस इट इज पेंटाएटॉमिक और जनरलाइज्ड फॉर्म में पॉलीएटॉमिक। इसे भी पॉलीएटॉमिक कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को भी पॉलीएटॉमिक कह सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल को भी पॉलीएटॉमिक कह सकते हो। अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आ जाते तो उसे सिंपल वर्ड में आप पॉलीएटॉमिक बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर्स होते हैं। जैसे ओजोन में 3 होते हैं, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन गैस में O2 होता है, 2 एटम्स। सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने होते हैं बेटा? 8। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा हम? इसे लिख सकते हैं octaatomic. 8 means octaatomic. So it has 8 atoms in the molecule of sulfur. There are 8 atoms in the molecule of sulfur. So it is octaatomic. और उसे क्या बोल सकते हैं बेटा? और we can write polyatomic molecule. क्या बोल सकते हैं? octaatomic molecule और polyatomic molecule. octaatomic molecule और polyatomic molecule. समझ में आया बेटा? क्लियर? श्योर? पता चला है? इतना समझ में आना चाहिए बेटा। So now moving on to the fourth topic of today and the last topic for today, that is ions. That is ion. Why do atom forms a molecule? आंसर सोचो बेटा जल्दी से। Why do atom forms a molecule? Why do atoms form a? Atoms को जरूरत क्या है molecule बनाने की? To gain a stability. To gain a stability. कुछ एटम डोनेट करते हैं, कुछ एटम्स गेन करते हैं। समझ में आया? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ एटम्स से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी। क्लियर? अगेन, सम एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी, सम एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी, सम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट एज वेल एज गेन टू हैव स्टेबिलिटी। तो उस तरीके से हमारे पास कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ सेमी मेटल्स है। वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस क्लास। बट यहां पे देखो कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स। सी, अगर उसकी ऑर्बिट में हम अरेंज करें तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। So here sodium atom will donate electron. Sodium atom will donate electron. Similarly, magnesium. Magnesium has 12 electrons. First orbit it has 2 electrons, in second there are 8 electrons, in the third is 2 electrons. So it will also donate electron. Similarly, aluminium. Aluminium total has 13 electrons. In first orbit 2, in second orbit 8, in third orbit 3. It will also donate 3 electrons. The atoms which donate electrons, it means it has 1, 2 or 3 electrons in the outermost orbit. They form positive ion. They form positive ions. They form positive ions. क्या कहते हैं उसे बेटा? देखिए वो क्या बनते हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉजिटिव आयंस बनते हैं। नाउ ये जो बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 1, तो इसे लिखेंगे Na+1। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 2, तो इसे लिखेंगे Mg+2। एल्यूमिनियम Al+3। सो दिस आर दी आयंस, दिस आर दी आयंस। तो सोडियम पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन। कितना है? प्लस मतलब पॉजिटिव आयन। 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब क्या कर रहा है? वो डोनेट कर रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1। इट इज डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली, इतना याद रखो, सिमिलरली अगर कोई एटम से जो गेन कर रहे हैं, अगर कोई एटम से जो क्या कर रहे हैं बेटा? गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। Nitrogen has total 5 electrons. In first orbit 2, in second orbit, total has 7 electrons. In first orbit 2, second orbit 5. Oxygen has total 8 electrons. In first orbit 2, in second orbit 6. Fluorine has total 9 electrons. First orbit 2, in second orbit 7.
So here it will gain 3 electrons, it will gain 2 electrons and it will gain 1 electrons, and thus they will become नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होता है, तो गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा. अगर हमारे अंदर से नेगेटिविटी बाहर फेंकते हैं तो हम पॉजिटिव बनते हैं, अगर हम नेगेटिविटी अंदर लेते हैं तो हम नेगेटिव बनते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं, सो दे बिकम नेगेटिवली चार्ज. वो मेटल्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकालते थे, सो दे बिकम पॉजिटिव. हियर नाइट्रोजन बिकम -3 चार्ज, oxygen becomes -2 charge, fluorine becomes -1 charged. Clear? These are also known as ions, either it is positive ion or negative ion, cations or anions. चाहे पॉजिटिवली चार्ज आयन बोले, नेगेटिवली चार्ज आयन बोले, या तो फिर केटायंस या एनायंस बोले. समझ में आया बेटा? तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, चैप्टर 3 उसमें टेबल दिया है 3.1 एंड 3.6. तो टेबल 3.1 एंड 3.6 दोनों टेबल को आपको 3 टाइम्स लिखना है. You have to write the 3 times table 3.1 as well as table 3.6, and you have to memorize the symbol for each and every atom given in the table as well as each and every ions given in the table. समझ में आया? कुछ एटम्स डोनेट एंड गेन दोनों कर सकते हैं, तो वो पॉजिटिव आयन भी होंगे जो और नेगेटिव आयंस भी होंगे, तो उसमें सारे दिया हुआ है. कुछ पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वी विल आल्सो डिस्कस द टेबल्स, बट बिफोर दैट यू हैव टू राइट 3 टाइम्स दी टेबल 3.1 एज वेल एज टेबल 3.6 एंड दी बोर्ड वर्क हियर. तो आपको क्लास वर्क भी करना है और होमवर्क में आपको टेबल 3.1 3.6 करना है. क्लियर बेटा? थैंक यू.